Good morning, students. How are you? I hope all of you are well. Today, we have to discuss about the new topic that is relation and functions. What is relation? Relation, as you know, that is the relation between two elements. So, first of all, we have to discuss about order pairs. Order pairs is a pair of objects or elements taken in a specific order. In the order pair AB, A is called the first element and B is called the second element. As you have done in 10th class or in ninth class, that is the Cartesian system of coordinates. If you have to consider the point 3, 5, 3 that is the abscissa and 5 is the ordinate. That means the general point that is xy. X is the abscissa and y is the ordinate. And here order pairs, that means A is the first element and B is the second element. And now the equality of two order pairs. Two order pairs means AB and CD. These are the two order pairs are said to be equal if the first component of first order pair is equal to the first component of second order pair and second component of first order pair is equal to the second component of the second order pair. That means two order pairs are equal if A is equal to C and B is equal to D. And now we have the कार्टीजियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स. जनरली आपने नंबर्स की प्रोडक्ट की है, अब हम सेट्स की कार्टीजियन प्रोडक्ट करते हैं. सेट्स की जो प्रोडक्ट है दैट इज कॉल्ड द कार्टीजियन प्रोडक्ट. एंड नाउ A and B are two sets. The Cartesian product of A and B is denoted by A cross B. It is written as A cross B, and it is the set of all order pairs AB, where A is in the set A and B is in the set B. And symbolically, we have to write A cross B such that AB, order pair AB, and such that A belongs to A and B belongs to B. Okay. And now, for example, let A set A is equal to 1 2 and set B is equal to ABC. ठीक है, तो A क्रॉस B क्या होगा? XY where belongs to A cross B, where X belongs to A and Y belongs to B. यानी कि हमें क्या करना है, फर्स्ट एलिमेंट हमने सेट A का लिया 1, 1 के साथ A, 1 के साथ B, 1 के साथ C. ठीक है, 1A, 1B एंड 1C. ठीक है, अब हम सेकेंड एलिमेंट ले रहे हैं सेट A का, तो सेट A का सेकेंड एलिमेंट क्या है? 2, तो 2 के साथ A, 2B and 2C. Okay, this is A cross B. And if we have to write B cross A, B cross A में क्या होगा कि ये जो हमारे पास X है, XY belongs to B cross A, X belongs to B and Y belongs to A. यानी कि अब हमें जो फर्स्ट एलिमेंट कंसीडर करना है वो B से कंसीडर करना है और सेकेंड एलिमेंट A से कंसीडर करना है. तो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ B क्या है? A. तो A के साथ 1, A के साथ 2. फिर then second element of set B, that is B1, B2 and then C1, C2. Okay, as you see this, A cross B is not equal to B cross A. Okay, and now we have this result. A cross B is not equal to B cross C for non-empty set and unequal sets. Okay, and if A cross phi, यानी कि अगर इन दोनों में से A और B में से एक एम्प्टी सेट है तो A क्रॉस phi हमारे पास क्या होगा? phi. और phi क्रॉस A क्या होगा? phi. ठीक है, एंड मॉडुलस ऑफ A क्रॉस B इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ A क्रॉस मॉडुलस ऑफ B. Yes, now the main things we have to remember. The first one, A cross B is not equal to B cross A unless A is equal to B. And second, if A and B are finite sets, then A cross B and B cross A are
finite. That means n of A cross B, number of elements of A cross B is equal to number of elements of B cross A. Both are equal. And then what is the number of A cross B? That is equal to NA into NB. ओके अगर सेट ए में 3 एलिमेंट्स हैं, सेट बी में 2 एलिमेंट्स हैं, तो n ऑफ ए क्रॉस बी यानी कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे? 3 इंटू 2 6 एलिमेंट्स होंगे. ओके एंड नाउ इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 5 यानी कि अगर क्रॉस प्रोडक्ट 5 है तो इट मीन्स ये 5 एम्प्टी कब होगा? जब इनमें से एक या दोनों ही हमारे पास एम्प्टी होंगे. ओके and now if A and B are non-empty sets and either A or B, that is an infinite set. ये नॉन एम्प्टी सेट है लेकिन इनमें से कोई अगर एक इनफाइनाइट है तो A क्रॉस B भी हमारे पास इनफाइनाइट होगा. Okay, and if there are 3 sets A, B and C, that means X belongs to A, Y belongs to B and Z belongs to C, then we form an ordered triplets. क्योंकि 3 सेट्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट हो रही है तो यहाँ पर ordered triplets हो जाएंगे. That is X, Y, Z. Okay, and that means A cross B cross C is equal to X, Y, Z. X belongs to A, Y belongs to B and Z belongs to C. Yes, and now we have relation. What is relation? Relation between teacher and student, relation between brothers, relation between brother and sister. That is simple, the relations. And now in mathematics, what is relation? Let A and B are 2 non-empty sets and then any subset of A cross B is the relation from set A to set B. यानी कि A cross B के जितने भी सबसेट्स हैं that is the relation. ठीक है, तो R is the relation from A to B if and only if R is a subset of A cross B. Okay, that means relation is a subset of A cross B if it satisfy the given conditions. Conditions भी तो होंगी ना. ठीक है, अब जैसे हम अपने फैमिली मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स के अंदर क्या होगा? रिलेशन तो डिफरेंट है ना सबका. आपके साथ, आपका अपने दादा दादी के साथ अलग रिलेशन है, आपके ब्रदर्स के साथ, ब्रदर सिस्टर्स के साथ अलग रिलेशन है, आपके पेरेंट्स के साथ अलग रिलेशंस है. यानी कि ये कंडीशंस डिफरेंट कंडीशंस हैं. ठीक है, R is a subset of A cross B if it satisfy the given conditions. Yes, now for example, we have to consider set A is equal to 1, 2, 3 contains 3 elements. Then the relation R on A cross A such that the first element is greater than the second element. A cross A. तो सबसे पहले हम A cross A की बात करते हैं. तो A cross A में क्या होगा? 1, 1, 1, 2, 1, 3. ठीक है, 2, 1, 2, 2, 2, 3 सेकेंड एलिमेंट ऑफ सेट ए से. फिर 3 के साथ देखते हैं तो 3, 1, 3, 2 एंड 3, 3. दिस इज ए क्रॉस ए. अब इसमें कंडीशन क्या दी हुई है कि फर्स्ट एलिमेंट इज ग्रेटर देन सेकेंड. तो फर्स्ट एलिमेंट इज ग्रेटर देन सेकेंड, ये वाला केस तो पॉसिबल नहीं है. 2, 1 हो सकता है. ठीक है, 2, 2 इक्वल हो जाएंगे, 2, 3 में क्या हो जाएगा? लेस देन हो जाएगा. और 3, 1 की बात करें तो 3, 1 भी आ जाएगा क्योंकि जो फर्स्ट एलिमेंट है 1 से ग्रेटर है और 3 2 से भी ग्रेटर है और 3 3 के इक्वल है यहाँ पर. तो हमारे पास ओनली 3 एलिमेंट्स होंगे, 2, 1, 3, 1 एंड 3, 2. दैट इज द रिलेशन. एंड देयरफॉर R is a subset of A cross B. As you see this R is a subset of A cross B. Yes. Now we have to find the total number of relations. Total number of relations जैसे A और B finite set है. A के अंदर हम सपोज कर लेते हैं m एलिमेंट्स हैं और B में n एलिमेंट्स हैं. तो then ऑर्डर पेयर कितने हो जाएंगे? A क्रॉस B में m into n. ठीक है, m into n. 3 into 2 की बात की थी तो 6 बने थे. यहाँ पर A क्रॉस B में क्या बन जाएंगे? m into n. ठीक है,
अब आपको ये पता है ना कि नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट कितने होते हैं, 2 रेज टू द पावर n। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली अगर किसी सेट के अंदर n एलिमेंट्स हैं तो नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे 2 रेज टू द पावर n। और नाउ a क्रॉस b में कितने एलिमेंट्स हैं, m क्रॉस n, m इंटू n। तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बन जाएंगे, 2 रेज टू द पावर mn। ठीक है, अब नंबर ऑफ सबसेट्स 2 रेज टू द पावर mn है, तो जितने सबसेट्स हैं उतने रिलेशंस हैं, बिकॉज ईच सबसेट इज ए subset of A cross B is a relation from A to B, and therefore the number of relations from A to B is 2 raised to the power m into n. Okay, yes, now the representation of sets, representation of relations, जैसे हमने sets को represent किया था वैसे हम relations को भी represent कर सकते हैं। roster form में elements लिखे जाएंगे, जैसे A cross सेट A में है 1 2 3 4 5 6, सेट B में है 1 2 30। ठीक है, R is a relation. What is the relation? Has its square from A to B. ठीक है, यानी कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकेंड एलिमेंट का क्या है, स्केयर है। तो इसकी रोस्टर फॉर्म में क्या लिखा जाएगा, 1 1 2 4। ठीक है, 1 का स्केयर क्या हो जाएगा 1, 2 का स्केयर 4, 3 का स्केयर 9, 4 का स्केयर 16, 5 का स्केयर 25। ठीक है, और यहाँ पर क्या एलिमेंट है 6, 6 का स्केयर क्या होगा 36, लेकिन 36 तो सेट बी में नहीं है। ठीक है, इसलिए वो इसका सबसेट तो बन ही नहीं सकता ना ए क्रॉस बी का, तो ओनली हमारे पास आर हो जाएगा 1 1 2 4 3 9 4 16 एंड 5 25। ओके, दिस इज द रोस्टर फॉर्म। और सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखेंगे, एक्स वाई, ऑर्डर पेयर एक्स वाई, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी, वाई इज द स्केयर ऑफ एक्स। ठीक है, ये इसकी रोस्टर फॉर्म है। यस, नाउ वी हैव द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रिलेशन बाय द एरो डायग्राम। एरो डायग्राम में क्या करना है, इसके अंदर हम एरो से रिलेट करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट को सेकेंड एलिमेंट से एरो से रिलेट करेंगे। ठीक है, अब जैसे सेट ए के अंदर क्या है 1 2 3 4 5 6, और सेट बी में है, सेट बी में 1 4 6 9 16 25 30 36 40 45, दैट इज गिवन हियर। ठीक है, तो R हमारे पास रिलेशन है, इज द स्क्वायर रूट फ्रॉम A टू B, स्क्वायर रूट फ्रॉम A टू B। तो दैट मीन्स 1 2 किसका स्क्वायर रूट है, 4 का, 3 9 का, 4 16 का, 5 25 का, और 6 36 का। अब इसको हमने एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है, तो एरो डायग्राम के अंदर हम पहले 2 सर्कल्स के फॉर्म में, ठीक है, ओवल शेप में हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और ओवल शेप के अंदर ये हमारे पास सेट ए है और ये क्या है सेट बी। ठीक है, तो इसमें हम सेट ए के एलिमेंट्स लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, और सेट बी के अंदर एलिमेंट्स गिवन है 1 4 9 16 25 30 36 40 45। ठीक है, हम ये सारे एलिमेंट्स इसमें राइट कर देते हैं। अब एरो डायग्राम है, अब रिलेशन के अंदर क्या है 1 1 के साथ है, 2 2 के साथ है, 3 9 के साथ है। तो अब हम 1 को ड्रॉ करते हैं, 1 को किसके साथ ड्रॉ करना है 1 के साथ, ये 1 है हमारे पास, 1 को 1 के साथ। ठीक है, अब ये 2 को 4 के साथ, और बीच में क्या लगानी है एरो, दैट इज नोन एज एरो डायग्राम। और 3 को 9 के साथ मैच कर दीजिए, एरो लगा दीजिए। 4 को 16 के साथ विद एरो, 5 को 25 के साथ,
ठीक है, और 6 को 36 के साथ, ठीक है, और बाकी एलिमेंट्स 40 30 भी रह गया, एक 40 है और 45, ठीक है। ये सेट बी के एलिमेंट्स को भी हमने पूरा सेट बी में राइट कर दिया। ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन? दिस इज द एरो डायग्राम। अब जैसे एक और एग्जांपल देख लीजिए, सेट ए में है 1 2 3, सेट बी में है एक्स वाई, तो रिलेशन है 1y 2x 2y 3x। तो 1 को y के साथ रिलेट किया, 2 को किसके साथ किया, 2 के साथ, और 2 को x के साथ भी और 2 को y के साथ भी, ठीक है, क्लियर हो गया। 1 को y के साथ, 2 को x के साथ, 2 को y के साथ और 3 को x के साथ। दैट इज द एरो डायग्राम। ओके, यस, एंड नाउ वी हैव द डोमेन एंड रेंज ऑफ ए रिलेशन। ए क्रॉस बी, यानी कि ए और बी हमारे पास टू नॉन एम्प्टी सेट हैं। आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। देन डोमेन, डोमेन यानी कि डोमेन क्या है, इनपुट जो हम पुट कर रहे हैं, ठीक है। डोमेन ऑफ आर इज द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द सेट ऑफ द ऑर्डर पेयर्स विच बिलोंग्स टू आर, ठीक है। जो भी ऑर्डर पेयर्स है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है दैट इज द डोमेन, ठीक है। और रेंज क्या है, रेंज इज द सेट ऑफ ऑल द सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर्स, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट जो है वो हमारे पास डोमेन है और जो सेकेंड एलिमेंट है वो हमारे पास क्या है, रेंज, ठीक है। द मेन पार्ट्स इज डोमेन एंड रेंज। डोमेन फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर and range is the second element of the order pairs which belongs to R, and these are the domain and range. Yes, now for example we have set A 1 2 3 4 5 6, set B 2 3 4 5 6 7, and then XY, relation XY, ठीक है। x belongs to xy belongs to a cross b, and what is the relation between x and y, that is y is equal to x plus 2, y is equal to x plus 2, जो सेकेंड एलिमेंट है फर्स्ट एलिमेंट के साथ 2 ऐड करके है। यानी कि अगर हम सेट A में से 1 एलिमेंट ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं, तो y हमारे पास क्या बनेगा, 2 + 1 3, और अगर हम 2 ले रहे हैं तो 2 + 2 4, 3 ले रहे हैं तो 3 + 2 5, 4 के साथ 6, 5 के साथ 7, और 6 के अंदर 2 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 8, और 8 सेट B में नहीं है। तो हमारे पास रिलेशन R हो गया रोस्टर फॉर्म में 1 3 2 4 3 5 4 6 and 5 7. Okay, and now what is the domain? Domain, that means first element of this relation 1 2 3 4 5, and range, what is the range? जो second element है 3 4 5 6 and 7, ठीक है, दिस इज द रेंज, ठीक है। अब सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं इसमें 4 और 4 एक्स्ट्रा है, ये दिस वन 2 एक्स्ट्रा है जिसका किसी के साथ कोई एलिमेंट के साथ रिलेशन नहीं आया, एंड दिस सेट बी इज नोन एज द कोडोमेन, ठीक है। कोडोमेन, दैट इज द सेकेंड सेट is called the codomain. It means the codomain is 2 3 4 5 6 7. It means you can also say that this range 3 4 5 6 7, that is a subset of codomain, ठीक है। डोमेन तो हो गया जो सेट A है, ठीक है, और जो सेट B है वो हमारे पास है कोडोमेन, और जो रेंज है, रेंज जो है कोडोमेन का सबसेट है, ठीक है। रेंज हमने क्या किया है, जो ये सेकंड एलिमेंट ऑफ रिलेशन है दैट इज द रेंज। ओके, अब जैसे इसके अंदर देखिए यहाँ पर सेट
एरो डायग्राम में 1 2 3 4 5 और यहाँ पर है 2 4 6 8 10 दैट इज द रेंज। जो डोमेन है सेट ऑफ ऑल एक्स एंड रेंज दैट इज द सेट ऑफ ऑल वाइज। ठीक है, अब इसमें आपस में रिलेशन देखिए कि रिलेशन क्या है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, x जो 1 है y के साथ क्या है, डबल है। इसका क्या है, 1 6 के साथ है, 2 2 के साथ, 3 4 4 8 के साथ है और 5 10 के साथ है। ओके, इट मीन्स द रिलेशन वी हैव टू राइट 1 6 2 2 3 4 4 8 and 5 10. Okay, this is the relation. Yes, now we have the types of relation. First one is the identity relation. Identity यानी कि itself. A relation R in a set A is called identity relation. That means जो order pair है उसके दोनों elements क्या होने चाहिए, same होने चाहिए। A where A belongs to A. ठीक है, A belongs to A. For example, set A is equal to 1 2 3. Then the relation R is 1 1 2 2 3 3. Same elements होंगे, that is the relation. Okay? Yes, now we have the universal relation. A relation R in a set A. जैसे हमारे पास यूनिवर्सल सेट था वैसे ही हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन। इफ R is equal to A क्रॉस A। ठीक है, जब R हमारे पास A क्रॉस A के इक्वल होगा तो देन दिस रिलेशन इज नोन एज यूनिवर्सल रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल, सेट A is equal to 1 4 5, then what is the universal relation? That means we have A cross A 4 4 4 5 5 4 and 5 5, that is the A cross A. Yes, now we have void relation. Void relation means empty relation, जिनका आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है, and that is denoted by R is equal to 5. Okay. Yes, now inverse relation. If R is a relation from set A to set B, then the relation R inverse from set B to set E. अगर R हमारे पास A to B है तो R inverse क्या होगा, B to A, and that is known as inverse relation. That means अगर R हमारे पास 1 2 3 4 है तो R inverse क्या हो जाएगा, 2 1 4 3. इट मीन्स ये जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हमने सेकेंड में चेंज कर दिया, सेकेंड एलिमेंट को फर्स्ट में चेंज कर दिया, यानी कि इंटरचेंज ऑफ टू एलिमेंट्स। ठीक है, फर्स्ट को सेकेंड में, सेकेंड को फर्स्ट में चेंज किया, दैट इज नोन एज द इनवर्स रिलेशन। ओके, वी कैन से दैट, यानी कि डोमेन, इसकी जो आर की डोमेन क्या है 1 3, तो डोमेन ऑफ आर इनवर्स क्या हो जाएगी, जो आर की रेंज है, और जो आर इनवर्स की रेंज है वो आर की क्या होगी, डोमेन हो जाएगी। क्योंकि हमने एलिमेंट्स चेंज किया है तो ऑटोमेटिकली डोमेन रेंज में चेंज हो जाएगा और रेंज डोमेन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।